નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું પંકજ. શરૂઆત એક મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી. પીએમ કેર્સ ફોર ચિલ્ડ્રન સ્કીમના લાભો આજે જાહેર થશે. પીએમ મોદી આજે યોજનાના લાભો જાહેર કરશે. સ્કૂલે જતા બાળકોની શિષ્યવૃત્તિને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે. આયુષ્યમાન ભારત પ્રધાનમંત્રી જન આરોગ્ય યોજના હેઠળ કાર્યક્રમ છે અને પીએમ કેર્સની પાસબુક, આરોગ્ય કાર્ડ બાળકોને સોંપાશે. 11 માર્ચ 2020 થી 28 ફેબ્રુઆરી 2022ના સમયગાળા દરમિયાન કોરોનામાં માતા-પિતા અથવા કાયદેસર વાલી અથવા દત્તક માતા-પિતા કે પછી બચી ગયેલાએ માતા-પિતા બંને ગુમાવ્યા હોય એવા બાળકો માટે પ્રધાનમંત્રીએ 29 મે 2021ના રોજ પીએમ કેર્સ ફોર ચિલ્ડ્રન યોજના શરૂ કરી હતી. બાળકોની નોંધણી માટે પીએમ કેર્સ ફોર children.in નામનું પોર્ટલ શરૂ કરાયું હતું. પોર્ટલ એ સિંગલ વિન્ડો સિસ્ટમ છે જે બાળકો માટે મંજૂરીની પ્રક્રિયા અને અન્ય તમામ સહાયની સુવિધા આપે છે. કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રીનો વડોદરા પ્રવાસ. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર આજે વડોદરાની મુલાકાતે છે. બપોરે 3 વાગ્યા સુધી કલેક્ટર કચેરીમાં હાજરી આપશે. કોરોનામાં માતા-પિતા ગુમાવનાર બાળકોને સહાયનું વિતરણ કરશે. સાંજે પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે પણ તેઓ સંવાદ કરવાના છે. તો કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર આજે વડોદરાની મુલાકાતે છે. વડોદરાની મુલાકાતે તેઓ આવી પહોંચ્યા છે. બપોરે 3 વાગ્યા સુધી તેઓ કલેક્ટર કચેરીમાં હાજરી આપશે અને કોરોનામાં માતા-પિતા ગુમાવનાર બાળકોને સરકાર તરફથી મળનારી સહાયનું તેઓ વિતરણ કરશે. જ્યારે સાંજે પ્રબુદ્ધ નાગરિકો સાથે સંવાદ પણ કરશે. તો વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર વડોદરાની મુલાકાતે છે. બપોરે 3 વાગ્યે તેઓ કલેક્ટર કચેરીમાં હાજરી આપશે. કોરોનામાં માતા-પિતા ગુમાવનાર બાળકોને સહાયનું વિતરણ કરશે. જ્યારે સાંજે જે સીએ છે અને પ્રબુદ્ધ નાગરિકો છે તેમની સાથે સંવાદ કરશે. તો પીએમ કેર્સ ફોર ચિલ્ડ્રન સ્કીમના જે લાભો છે તે આજે જાહેર થવાના છે. પીએમ કેર્સ ફોર ચિલ્ડ્રન સ્કીમના લાભો આજે જાહેર થવાના છે. પીએમ મોદી આજે યોજનાના લાભો જાહેર કરશે અને થોડી જ વારમાં તેઓ વિડીયો કોન્ફરન્સથી જોડાવાના છે અને પીએમ બાળકોની જે શિષ્યવૃત્તિ છે તેને ટ્રાન્સફર કરશે અને અમે આપને આ લાઈવ પ્રસારણ પણ બતાવીશું. તો સીધી તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો. પ્રધાનમંત્રી સંબોધન કરી રહ્યા છે. આવો સાંભળીએ. मान्यवर देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, प्रधानमंत्री जी, आज आपकी सरकार के कार्यकाल के 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं. चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, कृषि हो, वाणिज्य हो, आपकी सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जो उपलब्धियों का उत्सव ना मना सके. लेकिन उपलब्धियों के साये में आपने सर्वप्रथम चिंता की, समय दिया देश के बच्चों को, क्योंकि आपकी सरकार सत्ता के अहंकार से नहीं, सेवा के स्वभाव से चल रही है. इस सेवा के स्वभाव का दर्शन विश्व ने किया जब कोविड की महामारी से जूझते 80 करोड़ नागरिकों ने 25 महीने मुफ्त का राशन पाया. आपकी सरकार का सामर्थ्य दुनिया ने स्वीकारा जब राष्ट्र में निर्मित वैक्सीन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंची. लेकिन इस प्रशासनिक संकल्प में शायद ही किसी का ध्यान इस बात की ओर गया हो कि देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय गत 1 वर्ष से देश में 4,345 बच्चों का संरक्षण स्वयं कर रहा है. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता-पिता दोनों को कोविड में खोया. हर महीने ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता हो, उन्हें शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहें, ये चिंता स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने की. इस संवेदनशीलता के साक्षी हम रहे इस विभाग में, ये हमारा सौभाग्य है. आज आपकी उपस्थिति प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संदेश है कि इस देश की धरोहर मात्र उसका इतिहास नहीं बल्कि उसका भविष्य है, कि देश की पूंजी मात्र उसका खजाना नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं. That you have led with compassion, Prime Minister, is known to everybody and is our greatest joy. But your presence today, sir, is a message to our children that the nation cares, PM cares. सेवा के 8 वर्ष के लिए राष्ट्र की ओर से हम सब आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं.
आपकी अनुमति से प्रधानमंत्री जी, अब हम एक लघु फिल्म दिखाना चाहेंगे जिसमें हम दर्शाना चाहते हैं कि सबके प्रयास से ये योजना कैसे वास्तविकता में बदली। साल 2020 कोरोना पूरी दुनिया के लिए बनकर आई अभूतपूर्व चुनौती। भारत भी नहीं रहा इससे अछूता। देश ने एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना। लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કરી રહ્યા છે, સાંભળીએ। एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी देश भर में अलग अलग स्थानों से जुड़े मंत्रिमंडल के सारे सदस्य, उनके साथ मौजूद वहां के वरिष्ठ नागरिक और विशेषकर जिनके लिए आज का ये दिवस है, वैसे उपस्थित सभी प्यारे बच्चे, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, अन्य महानुभाव और प्यारे देशवासियों, आज मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। आज आप सभी बच्चों के बीच आकर मुझे बहुत सुकून मिला है। साथियों, जीवन हमें कई बार अप्रत्याशित मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी स्थितियां जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है, हंसते खेलते हुए अचानक अंधेरा छा जाता है, सब कुछ बदल जाता है। कोरोना ने अनेकों लोगों के जीवन में, अनेकों परिवारों में ऐसा ही कुछ किया है। मैं जानता हूं, कोरोना की वजह से जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके जीवन में आया ये बदलाव कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। हर दिन का संघर्ष, पल पल का संघर्ष, नई नई चुनौतियां, हर दिन की तपस्या। आज जो बच्चे हमारे साथ हैं, जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है, उनकी तकलीफ शब्दों में कहना मुश्किल है। जो चला जाता है, उसकी हमारे पास सिर्फ चंद यादें ही रह जाती हैं, लेकिन जो रह जाता है, उसके सामने चुनौतियों का अंबार लग जाता है। ऐसी चुनौतियों में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन आप सभी ऐसे कोरोना प्रभावित बच्चों की मुश्किलें कम करने का एक छोटा सा प्रयास है। जिनके माता और पिता दोनों नहीं रहे, साथियों, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ है। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जा चुका है।
पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे को, उनके गार्डियंस को उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड से 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग तो है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए हो। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया है, उस हौसले के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। और मैं एक बात और कहूंगा, मैं जानता हूं कोई भी प्रयास, कोई भी सहयोग आपके माता पिता के स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता के, अपनी मां के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है और
ये प्रयास किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है। पीएम केयर्स में हमारे करोड़ों देशवासियों ने अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई को जोड़ा है। आप याद करिए, सेवा और त्याग के कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं। किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर दी, तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी इसमें लगा दी। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर्स खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद की। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सका, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सका। और जो हमें असमय छोड़ गए, आज ये फंड उनके बच्चों के लिए, आप सबके भविष्य के लिए काम में आ रहा है। साथियों, अभी आप सबको जीवन में एक लंबी यात्रा करनी है। आप सभी बहुत साहस से जीवन में आई स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व में हो, उन्होंने अपने जीवन में कभी न कभी अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सफलता के शिखर तक पहुंचे। उन्होंने हार को कभी हताशा में नहीं बदलने दिया। जीत का यही मंत्र आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, मदद करेगा। इसे कभी भूलना नहीं है। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अब आपके पास अच्छे, बुरे, सही, गलत, इसका भेद बताने के लिए आपके परिजन और शिक्षक ही है। इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने। आपका एक भरोसेमंद साथी ऐसे संकट की भरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वो अच्छी पुस्तकें भी हो सकती हैं। अच्छी पुस्तकों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि वो आपको मार्गदर्शन भी देती है। आपको मैं एक और सलाह दूंगा। साथियों, जब बीमारी आ जाए तो उपचार की जरूरत तो होती है, लेकिन जीवन उपचार से नहीं, आरोग्यता से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों के लिए आज देश में फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान चल रहे हैं। आपको इन सभी अभियानों से जुड़ना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद ही योग दिवस भी आने वाला है। आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ ही योग भी आपके जीवन का अंग बने, ये भी बहुत जरूरी है। साथियों, निराशा के बड़े से बड़े माहौल में भी अगर हम खुद पर भरोसा करें तो प्रकाश की किरण अवश्य दिखाई देती है। हमारा देश तो खुद ही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हम इस समय
अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सैकड़ों सालों की गुलामी में, इतनी लंबी आजादी की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हमारी ताकत थी हार न मानने की हमारी आदत। हमारी ताकत थी अपने निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर देश के लिए, मानवता के लिए सोचने और जीने के हमारे संस्कार। आजादी के अमृत महोत्सव में हम इसी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसी स्पिरिट को देश ने कोरोना के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई में जिया है और दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है। आप देखिए, 2-2.5 साल पहले दुनिया में किसी को कोरोना वायरस के बारे में ठीक से पता ही नहीं था। हर कोई दुनिया के बड़े बड़े देशों की तरफ उम्मीद लगाए देख रहा था। भारत के बारे में तो कहीं कोई सकारात्मक बात भी करने को तैयार नहीं था, बल्कि ऐसे हालातों में तबाही का जो इतिहास रहा है, उसकी वजह से लोग भारत को बहुत ही आशंका की नजर से देख रहे थे। लेकिन नकारात्मकता के उस माहौल में भारत ने अपने सामर्थ्य पर भरोसा किया। हमने अपने वैज्ञानिकों, अपने डॉक्टर्स, अपने युवाओं पर भरोसा किया और हम दुनिया के लिए चिंता नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण बनकर के निकले। हम प्रॉब्लम नहीं बने, बल्कि हम सॉल्यूशन देने वाले बने। हमने दुनिया भर के देशों को दवाइयां भेजी, वैक्सीन्स भेजी। अपने इतने बड़े देश में भी हम हर एक नागरिक तक वैक्सीन लेकर गए। आज करीब 200 करोड़ वैक्सीन डोज देश में लगाई जा चुकी है। इस आपदा के बीच ही हमने आत्मनिर्भर भारत जैसे संकल्प की भी शुरुआत की और आज ये संकल्प तेजी से सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कोरोना के दुष्प्रभावों से निकलकर आज हम सबसे तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गए हैं। विश्व हमें आज एक नई उम्मीद से, नए भरोसे से देख रहा है। साथियों, आज जब हमारी सरकार अपने 8 वर्ष पूरे कर रही है, तो देश का आत्मविश्वास, देशवासियों का खुद पर भरोसा भी अभूतपूर्व है। भ्रष्टाचार, हजारों करोड़ के घोटाले, भाई भतीजावाद, देश भर में फैल रहे आतंकी संगठन, क्षेत्रीय भेदभाव, जिस कुचक्र में देश 2014 से पहले फंसा हुआ था, उससे अब बाहर निकल रहा है। ये आप सभी बच्चों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि कठिन से कठिन दिन भी गुजर जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र पर चलते हुए भारत अब तेज गति से विकास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन हो, जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या फिर हर घर जल अभियान, बीते 8 वर्ष गरीब की सेवा, गरीब के कल्याण के लिए समर्पित रहे हैं।
एक परिवार के सदस्य के तौर पर हमने ये प्रयास किया है कि गरीब के जीवन की मुश्किलें कम हो, उसका जीवन आसान बने। देशवासियों को जिस प्रकार से जहां भी प्रोएक्टिवली उनके लिए कुछ किया जा सकता है, कोई कमी नहीं रहने दी। जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से पहले सरकारें भी घबराती थी, लोगों को भी आदत नहीं थी, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाकर हमारी सरकार ने गरीब को उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। अब गरीब से गरीब को भरोसा है कि सरकार की योजनाओं का लाभ उसे मिलेगा, निरंतर मिलेगा। इस भरोसे को बढ़ाने के लिए ही हमारी सरकार अब 100% सशक्तिकरण का अभियान चला रही है। कोई गरीब सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटे नहीं, हर गरीब को उसका हक मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बीते 8 वर्षों में भारत ने जो ऊंचाई हासिल की है, वो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आज दुनिया में भारत की आन बान शान बढ़ी है। वैश्विक मंचों पर हमारे भारत की ताकत बढ़ी है और मुझे खुशी है कि भारत की इस यात्रा का नेतृत्व युवा शक्ति ही कर रही है। मुझे भरोसा है कि आप सभी, हमारे बच्चे, हमारे युवा इसी हौसले और मानवीय संवेदनशीलता के साथ देश और दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। संकल्प लेकर के चले, संकल्प को जीवन समर्पित करने की तैयारी करें। सपने साकार हुए बिना रहेंगे नहीं। आप जहां जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहेंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अगर आपके भीतर जज्बा है, आपके भीतर संकल्प है और संकल्प को सिद्ध करने के लिए सामर्थ्य है, तो आपको कभी रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था, एक परिवार के व्यक्ति के नाते आज बात कर रहा हूं। परिवार के व्यक्ति के नाते आज मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं आशीर्वाद देने का मुझे कोई हक है कि नहीं है, लेकिन मुझे आप में सामर्थ्य दिख रहा है, आप बच्चों में सामर्थ्य दिख रहा है और इसलिए मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। आप बहुत आगे बढ़िए। आपको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। તો પીએમ મોદીએ દેશવાસીઓને વર્ચ્યુઅલી આ સંબોધન કર્યું છે। આ સંબોધનમાં તેમણે પીએમ કેર ફંડ વિશે જણાવ્યું છે અને સાથે જ તમામ લોકોને કહ્યું છે કે પહેલા જે રીતે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ નહોતો થતો, પરંતુ અત્યારે આ જ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ સરકાર કરે છે।